Hello friends, welcome to Alsmate. From today onwards, I have decided to post my Band 9 masterpiece essays for you all part by part. All the essays will be posted, and this is the first essay for you. This is a masterpiece essay containing complex sentences, vocabulary, and everything that should be there in the essay with the perfect format that you should know. Please comment and let me know how did you like this essay, and you can WhatsApp me on the given number if you want training on writing such essays. And this is the first part of this essay only, and let me know if you want further parts also, because I have decided to post part by part, and second part I will post tomorrow if you want. So please comment if you want the second part. Hello, welcome to IELTSmate. Today the essay topic which I have chosen is: some people think that government should decide which subjects students study at the university, while others think students should be allowed to apply for the subjects they prefer. Question is very simple. We have to discuss both the views. Some people think that government should decide subjects for the students in the university, while others think that students should be permitted, should be allowed to apply for the subjects they prefer, they like, means they will choose the subjects which they are going to prefer in the university. Now when it comes to introduction, I have today written introduction in two formats, and let us look at the first format for discuss both the views. So like every question, I have taken a general line here also and started with undebatably, because the fact I have given is undeniable. There is no doubt in this fact. So if there is no doubt in the fact, then we'll say undebatably, or we can say it is irrefutable that, or we can write irrefutably alone. और irrefutably को अकेला भी लिख सकते हैं, it is undebatable भी लिख सकते हैं, it is irrefutable भी लिख सकते हैं. Education plays an indispensable role in building the successful career of a person. Education plays an important role की जगह we have taken indispensable role. We can take significant role, considerable role, but here in indispensable role means very important, and in हिंदी जिसके बिना काम चल ही ना सके उसको हम indispensable कहते हैं कि इसका role indispensable है. Now we have rephrased the question, and here we have chosen a complex sentence. Rather than writing some people think this and other people, we have taken where certain fox is informal word, so I have marked it as informal. Instead of fox, we'll write either people only or individuals. Masses here is also wrong, because we cannot say certain masses or some masses. We cannot choose these words some or certain with masses, so we have to use only either people or individuals. Since now certain individuals or certain people, or we can say a school of thought, according to a school of thought, to give the opinion, हम some people think की जगह according to a school of thought भी कह सकते हैं कि एक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग फिर हम ओपिनियन लिखना शुरू करते हैं. पहला वाला अब यहाँ में लिखा है वेयर सडन पीपल ओपाइन दैट चूजिंग द डिसिप्लिन. तो पहला जो आज मैं टिप बता रही हूँ, स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए सेंटेंस के फर्स्ट वी हैव टू यूज़ अ वर्ब. we can start with a verb, means this is the first way we can start with a verb, and the question was starting with a noun. Government should decide the subject student should study. ठीक है, हमने क्या कहा, चूजिंग द डिसिप्लिन्स. डिसिप्लिन्स हमने किसके लिए लिया, सब्जेक्ट के लिए. चूजिंग द डिसिप्लिन्स प्यूपल स्टूडेंट के लिए होता है PUPILS, कि वो डिसिप्लिन यानी वो सब्जेक्ट जो प्यूपल स्टडी करेंगे. चूजिंग द डिसिप्लिन्स प्यूपल्स वुड स्टडी इन अ वार्सिटी. वार्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी का सिनोनिम है. चूजिंग द डिसिप्लिन्स प्यूपल्स वुड स्टडी इन अ वार्सिटी हैज़ टू बी द ऑनर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स. यहाँ पर मैंने शुड बी की जगह ले लिया हैज़ टू बी. तो शुड बी की जगह और क्या क्या ले सकते हैं हम, ought टू बी, OUGHT, ought टू बी ले सकते हैं, मस्ट भी ले सकते हैं. यहाँ वार्सिटी, आई रिपीट, यूनिवर्सिटी के लिए है. अब यहाँ पर मैंने क्या किया, चूजिंग द डिसिप्लिन पीपल्स वुड स्टडी इन अ वार्सिटी शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की बजाय मैंने ले लिया हैज़ टू बी द ऑनर्स. ऑनर्स मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड गवर्नमेंट के लिए ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो यहाँ चूजिंग से हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब हमने ऐसे चूज़ करना से स्टार्ट कर लिया कि डिसिप्लिन को चूज़ करना जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो जिस वर्ब के साथ हमने ना लगाना, करना, जैसे मुझे डांस करना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक डांसिंग, डांस करना.
तो ना लगा हुआ हिंदी में, तो चूजिंग आ जाएगा, चूजिंग द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को चूज करना, और वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर वर्ब प्लस ing से स्टार्ट हो जाएगा। देन अदर्स आर ऑफ द व्यू दैट, उसी के साथ कॉमा लगा है कि जहाँ कुछ लोग ये कहते हैं, कॉमा अदर्स आर ऑफ द व्यू, या तो आर ऑफ द ओपिनियन कह सकते हैं या अकेला ओपाइन कह सकते हैं, तो आर ऑफ द ओपिनियन भी एक अच्छा वे है। तो अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस अपॉर्चुनिटी टू चूज, अब यहाँ मैंने अपॉर्चुनिटी वर्ड ले लिया, यानी अपने आप से बीच में कुछ इनोवेशन ले आए, कुछ क्रिएटिविटी ले आए कि ये चूज़ करने की ये जो अपॉर्चुनिटी है ये किसको दी जानी चाहिए, तो दी जानी चाहिए, पैसिव वॉइस है, तो जिसको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ डिस्कस। मस्ट बी गिवन, हम शुड बी गिवन, मस्ट बी गिवन, इस तरह से पैसिव वॉइस लिखते हैं, बी प्लस थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं शुड वाले केसेस में कि किया जाना चाहिए, तो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दैट अपॉर्चुनिटी टू चूज मस्ट बी गिवन, अब गिवन की जगह हमने क्या क्या वर्ड यूज़ किए हैं, बेस्टोर्ड, कन्फर्ड और गिवन के लिए, तो बेस्टोर्ड और कन्फर्ड जो है गिवन के सिनोनिम है। मस्ट बी बेस्टोर्ड एंड मस्ट बी कन्फर्ड टू द लर्नर्स, टू द लर्नर्स देमसेल्व्स, कि लर्नर्स को ही दे देनी चाहिए। तो नेक्स्ट आगे आई हैव गिवन द व्यू, आई एस्पाउस द लैटर बिलीफ, एस्पाउस इज यूज्ड फॉर सपोर्ट word, and whenever we I repeat, I have already said in earlier essays कि जब हम किसी बिलीफ को सपोर्ट करते हैं तो हम एस्पाउस लगा सकते हैं, उसके लिए एस्पाउस हर जगह यूज़ नहीं होता सपोर्ट के लिए, बट बिलीफ के लिए यूज़ होता है। आई एस्पाउस द लैटर बिलीफ, लैटर का मतलब जो सेकंड वाला है, और अगर मैं फॉर्मर बिलीव्स लिखती इट मीन्स फर्स्ट वाला व्यू होता वो। तो आई रिकॉन दैट, ये या तो हम ये लिख सकते हैं छोटी सी लाइन कि मैं बाद वाले व्यू के साथ हूँ, या तो सीधा अपना पूरा व्यू लिख दिया। तो पूरा व्यू अब मैंने यहाँ पर दोबारा चूज़ इसलिए किया है लिखना कि आपको पता चले कि कैसे अलग अलग तरह से हम सेम बात को दोहरा रहे, रिफ्रेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अब अपना व्यू किसी और तरीके से बताया ताकि रिपीटिशन ना हो, क्योंकि रिपीटिशन होती है फिर बार बार, क्योंकि 3 बार व्यू हम बता चुके हैं। तो आई रिकॉन दैट इट, अब यहाँ पर दूसरा टिप है कि या तो अब जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है वर्ब से, तो इट से स्टार्ट करने की कोशिश करो। एक बार वर्ब से स्टार्ट कर लिया, वर्ब प्लस ing से, और एक बार इट से स्टार्ट कर लिया कि इट वुड बी सैल्यूटरी फॉर द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स इफ़ दे आर कन्फर्ड, मीन्स गिवन, कन्फर्ड और रेंडर्ड भी गिवन के लिए होता है, बेस्टोर्ड भी गिवन के लिए, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो कन्फर और रेंडर होती है। परमिशन, इफ़ दे आर गिवन परमिशन, यह बहुत ही अच्छा होगा, तो इट वुड बी सैल्यूटरी, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स अगर उनको परमिशन दी जाए, इफ़ दे आर कन्फर्ड परमिशन टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स दे एस्पायर टू एक्सप्लोर, जो वो पढ़ना चाहते हैं।